قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ مجھ جیسے غریبوں پہ میرے خواجہ پیا کا، مجھ جیسے غریبوں پہ میرے خواجہ پیا کا فیضان تھا، فیضان ہے، فیضان رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا، اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ حضرات، سلطان الہند خواجہ خواجگاں مالک ہندوستان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ کے دشت مبارک پر تقریباً 90 لاکھ غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا۔ شان دیکھیے سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی کہ آپ جب مدینہ شریف سے اجمیر شریف کی دھرتی پر تشریف فرما ہوئے، چند آپ کے مریدین، آپ کے معتقدین، آپ کے چاہنے والے آپ کے ساتھ میں ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا جہاں پر راجہ پرتھوی راج کے اونٹوں کو باندھا جاتا تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ اسی مقام پر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد راجہ پرتھوی راج کے نوکر جب اونٹوں کے چرانے کا وقت ہو جاتا ہے، ان اونٹوں کے پاس جاتے ہیں۔ جانے کے بعد ان اونٹوں کو اٹھانے سے پہلے کیا دیکھتے ہیں کہ چند اللہ والے ذکر و اذکار کر رہے ہیں، ذکر کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ راجہ پرتھوی راج کے نوکروں نے کہا، آپ یہاں سے جائیے، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، یہاں کیوں آئے ہیں؟ جہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے یہاں پر راجہ پرتھوی راج کے اونٹوں کو باندھا جاتا ہے۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا، مجھے تمہاری زمین و جائیداد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف اتنی جگہ چاہیے جہاں پر ہم مصلی بچھا کر کے عبادت کر سکیں۔ ہم تمہاری زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، راجہ کا حکم ہے، آپ کو ماننا پڑے گا، آپ یہاں سے جائیے، یہاں پر راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اچھا جاؤ، اگر اونٹ بیٹھتے ہیں تو اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اگر اونٹ بیٹھتے ہیں تو اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ آپ نے اپنے مریدوں کو ساتھ میں لیا، انا ساگر تالاب کے قریب پہنچتے ہیں، وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھتے، باقی ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ ادھر جب اونٹوں کے چرانے کا وقت قریب ہوا، راجہ پرتھوی راج کے نوکر اونٹوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ اونٹوں کو کھول کے ان کو چرانے کے لیے لے جایا جائے۔
जब वो ऊंटों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी ऊंट अपनी जगह से टस से मस नहीं कर रहा, कोई भी ऊंट अपनी जगह से उठ तक नहीं रहा। राजा पृथ्वीराज के नौकर बड़ा हैरान व शशदर, शशोपंज में डूबे हुए हैं, आखिर मामला क्या है, ऊंट अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहे हैं। इससे पहले जब हम आते थे ये खुद ब खुद हमें देख करके खड़े हो जाते थे, इन्हें भी मालूम था कि हमारे चरने का वक्त हो गया है। आज हम इन पे चाबुक, कोड़े पे कोड़े मार रहे हैं, लेकिन ये अपनी जगह से टस से मस क्यों नहीं कर रहे हैं। आखिर बड़ा परेशान हुई, उठते भी कैसे, किसी दुनियादार ने नहीं बिठाए थे। ख्वाजाए हिंद, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के बिठाए हुए से थे। दुनिया की कोई भी ताकत ऊंटों को उठा नहीं सकती थी। वो परेशान हो गए। होने के बाद राजा के पास आए, आने के बाद कहते हैं आज अजीबो गरीब हाल हो गया। का क्या हुआ? का आज हमारे ऊंट अपनी जगह से हिल नहीं रहे, टस से मस नहीं कर रहे हैं। हमने बहुत कोशिशें की हैं लेकिन ऊंट नहीं खड़े हो रहे हैं। राजा ने पूछा ऐसा क्यों? उसके नौकरों ने कहा बात यह है, चंद अल्लाह वाले आए हुए थे, वो जिक्र अस्कार कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, हमने उनको यहां से भगाया। उन्होंने कह दिया था कि अगर राजा के ऊंट बैठते हैं तो ऊंट ही बैठेंगे। इतना सुनना था। राजा पृथ्वीराज ने कहा नौकरों सुनो, जब तक वो दुर्वेश, जब तक वो अल्लाह वाले माफ नहीं करेंगे, हमारे ऊंट अपनी जगह से टस से मस नहीं कर सकते हैं। नौकरों ने कहा क्या करना चाहिए? राजा ने कहा जाओ उस अल्लाह वाले की तलाश शुरू कर दो। वो अल्लाह वाला जब तक माफ नहीं करेगा ऊंट उठेंगे नहीं। राजा पृथ्वीराज के नौकर चाकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तलाश में निकल पड़ते हैं। क्या देखते हैं कि आप अना सागर तालाब के करीब पड़ाव डाले हुए हैं। जाकर के राजा पृथ्वीराज के नौकरों ने कहा हुजूर बाला आपने कह दिया हमारे ऊंट बैठते हैं तो ऐसे बैठ गए कि हम उनको बहुत मारते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह से टस से मस नहीं कर रहे हैं। हुजूर बाला हम माजरत चाहते हैं, हम माजरत तलब करते हैं, ऐसा कर दीजिए हमारे ऊंट अपनी जगह से खड़े हो जाएं। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया वादा करो दोबारा गलती तो नहीं करोगे। उन्होंने कहा ठीक है वादा करता हूं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। आपने फरमाया जाओ तुम्हारे ऊंट खड़े हो जाएंगे। इतना कहना था। राजा पृथ्वीराज के नौकर चाकर ऊंटों के करीब आते हैं। अब जब ऊंट नौकरों को देखते फौरन खड़े हो जाते हैं। इस्लामी भाइयों कहने का मकसद यह है आज पूरी दुनिया तक मेरी इस आवाज को पहुंचाया जाए। अगर हम तारीख का मुताला करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा तकरीबन 800 साल पहले अजमेर शरीफ की धरती पर ख्वाजा गरीब नवाज ने ऊंटों को बिठाया था। बिठाने के बाद जब तक माफी नहीं तलब की थी, ऊंट खड़े ना हुए थे, तो पूरी दुनिया तक मेरी इस आवाज को पहुंचाया जाए कि जब ख्वाजा गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊंटों को राजा पृथ्वीराज के नौकर चाकर उठा ना सके, जब राजा पृथ्वीराज के चाहने वाले ख्वाजा गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊंटों को उठा ना सके, तो हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज के बसाए हुए मुसलमानों को कौन निकाल सकता है? दुनिया की कोई भी ताकत ख्वाजा गरीब नवाज के बसाए हुए मुसलमानों को नहीं निकाल सकती है। ये शान है मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की। ऊंट खड़े हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मुरीदों के साथ तालाब के करीब तशरीफ फरमा जिक्र अस्कार कर रहे। राजा के नौकरों ने जाकर के फिर शिकायत की। राजा ने कहा क्या करना चाहिए? का तालाब के करीब सिपाहियों का पहरा लगा दीजिए, इनको पानी ना लेने दिया जाए। जब इन्हें पानी नहीं मिलेगा ये खुद ब खुद वहां से चले जाएंगे। तालाब के करीब पहरा लगा दिया गया, सिपाहियों का पहरा लगा, वहां से आपको भगाया। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मुरीदों के साथ एक दूसरे मकाम पर तशरीफ फरमा हो जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں نے کہا حضور بالا اگر آپ کی خاموشی اور لا تعلقی کا یہی حال رہا تو عنقریب یہ لوگ ہمیں اجمیر کی دھرتی پر رہنے نہیں دیں گے۔ خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا اے میرے مریدوں گھبراؤ مت، اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنا فرمایا، پھر آپ کے مریدین تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کہتے حضور بالا آپ کچھ کیجئے۔ اب تو انہوں نے تالاب کے کنارے سپاہیوں کا پہرا لگا دیا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا کہنا تھا، آپ نے اپنے مرید کو بلایا، بلانے کے بعد چھوٹا سا پیالہ ہاتھ میں دیا، فرماتے میرے غلام جا تالاب کے قریب چلا جا، کھڑے ہو کر کے کہہ دینا پانی تجھے خواجہ پیا نے بلایا ہے۔ مرید نے پیالہ لیا، لے کر کے تالاب کے کنارے گیا۔ جانے کے بعد جو ہی تالاب کے کنارے مرید کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر کے کہتا پانی سن، یہ نہ دیکھ میں کون ہوں بلکہ یہ دیکھ مجھے بھیجا کس نے ہے۔ اے پانی سن، تجھے خواجہ پیا نے بلایا ہے۔ سارے تالاب کا پانی نچڑ نچڑ کے چھوٹے سے پیالے میں آ گیا۔ میں نے تصور میں پوچھا غریب نواز سارے تالاب کا پانی چھوٹے سے پیالے میں منگانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو غریب نواز کے گنبد سے آواز آتی ہے اے مرید رضا میں نے سارے تالاب کا پانی ایک چھوٹے سے پیالے میں اس لیے منگایا ہے تاکہ زمانہ جان جائے جب میں اجمیر کی دھرتی پر بیٹھ کر کے سارے تالاب کا پانی اپنے مرید سے ایک چھوٹے سے پیالے میں منگوا سکتا ہوں، جب میں سارے تالاب کا پانی ایک چھوٹے سے پیالے میں منگوا سکتا ہوں، یقیناً اپنے چاہنے والوں کو اپنے دامن میں بھی چھپا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے خواجہ کی۔ سپاہیوں کا پہرا لگا رہا، تالاب کا پانی ختم ہو گیا۔ سپاہیوں نے مڑ کے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں سارے سپاہی کھڑے، پانی غائب۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ اجمیر کی دھرتی پر جتنے کنویں تھے سارے کنووں کا پانی بھی خشک ہو گیا تھا، سارے تالاب کا پانی بھی چلا گیا، کنووں کا بھی پانی خشک ہو گیا۔ سپاہیوں کا پہرا لگا، جب سپاہیوں نے منظر دیکھا جا کر کے راجہ پرتھوی راج کو بتایا تو راجہ پرتھوی راج نے کہا یہ اسی کا کام ہے، سلطان الہند خواجہ پیا جس کا نام ہے، یہ کرامت اسی نے دکھائی ہے جس کا ہمیں ڈر تھا، جس نے ہمارے اونٹوں کو بٹھایا تھا۔ اب اس نے یہ کر دیا کہ سارے تالاب کا پانی غائب کر دیا۔ جب تک خبر مل گئی حضور کنووں کا بھی پانی خشک ہو گیا۔ اب راجہ ششو پنج میں ڈوب گیا۔ راجہ کے سپاہیوں نے کہا راجہ کچھ کیجئے۔ راجہ پرتھوی راج نے کہا کیا کروں؟ اس سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ جب وہ سارے تالاب کا پانی ایک بوتل میں بھر سکتا ہے، جب وہ سارے تالاب کا پانی ایک پیالے میں بھر سکتا ہے، مجھے کہیں بوتل میں نہ بھر دے۔ مجھے ڈر تو اس بات کا ہے جو سارے تالاب کا پانی ایک جھاگل میں بھر لے، مجھے وہ بوتل میں بھر سکتا ہے۔ سپاہیوں نے کہا کچھ کیجئے ورنہ آپ کی حکومت کو زوال پہنچے گا، عنقریب وہ اللہ والا اپنی حکومت کا سکہ رائج کر لے گا۔ کہا اس اللہ والے سے مقابلہ کرنا تو آسان نہیں ہے، لہذا انتظام کیا جائے گا۔ اس وقت ایک بہت بڑا جادوگر تھا جس کا نام جوگی جے پال تھا۔ جادوگر جوگی جے پال اتنا بڑا جادوگر تھا، کتابوں میں لکھا تھا کہ 1100 اس کے چیلے تھے۔ جادوئی طاقت سے ہوا میں پرواز کرتا تھا، ہوا میں اڑا کرتا تھا۔ جوگی جے پال نے جادوگر کے پاس خبر بھیجی کہ آپ یہاں آ جاؤ۔ جادوگر ہوائی طاقت سے، جادوئی طاقت سے ہوا میں پرواز کرتا ہوا آتا ہے۔ جو ہی جوگی جے پال آیا، راجہ پرتھوی راج نے بڑا خاطر و تواضع کی، کرنے کے بعد سارا معاملہ بتایا تو جادوگر نے کہا کہ میں اسے چند سیکنڈوں میں معاذ اللہ نیست و نابود کر دوں گا، اس کی کیا مجال ہے جو میرے سامنے ٹک سکے؟ کہا ٹھیک ہے۔ جادوگر جوگی جے پال نے خواجہ غریب نواز کے پاس خبر پہنچائی کہ میں کافی دور سے آیا ہوں، آپ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا ٹھیک ہے، آؤ ایک وسیع اور عریض میدان میں، ایک وسیع اور عریض میدان میں جاتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے زمین پر انگلی سے حصار کیا، اپنے مریدوں سے فرمایا مریدوں اس کے اندر بیٹھ جاؤ۔
ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदीन, मुतक़िदीन, मुहिब्बीन उसी हिसार में बैठ गए। दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर जोगी जयपाल बैठ गया। जादुई पिटारा खोलता है, जादुई ताकत से पूरे मैदान में सांप पैदा कर देता है। वो सांप ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदों की तरफ बढ़ते हैं। आपके मुरीदीन घबराए। आपने फरमाया घबराओ मत, अल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने हाथ में मिट्टी को लिया, मैदान में फेंक दिया, आग गायब हो जाती है। जादूगर ने दूसरा हरवा इस्तेमाल किया, जादुई ताकत से पूरे मैदान में सांप पैदा कर देता है। ख्वाजा गरीब नवाज ने मिट्टी को लिया, मैदान में फेंक दिया, सांप गायब हो गए। अब जादूगर जोगी जयपाल शशोपज में डूब गया कि मैं इतना बड़ा जादूगर हूं, इतना बड़ा जादूगर हूं, आज तक किसी ने मेरा एक भी जादू काटा नहीं है, लेकिन ये किस अल्लाह वाले से मेरा पाला पड़ गया है कि कई मैंने हरबे किए, सारे हरबों को नाकाम कर दिया। जादूगर जोगी जयपाल गुस्से में आपे से बाहर हो गया। हिरन की खाल के ऊपर बैठ करके हवा में प्रवास करने लगता है। हवा में प्रवास करता हुआ गरीब नवाज की तरफ बढ़ रहा था, कह रहा था, अरे गरीब नवाज देखिए तुम्हारे अंदर कितना पावर है, आइए हमसे मुकाबला कीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सर नहीं उठाया, अपनी लकड़ी की खड़ाव जो पैरों में पहने हुए थे, लकड़ी के खड़ाव को लिया, हाथ में पकड़ा। पकड़ने के बाद कहते हैं लकड़ी की खड़ाव जा इस जालिम को मेरे कदमों में लाकर हाजिर कर दे। इतना कहना था, आपकी लकड़ी की खड़ाव हवा में प्रवास करने लगती है। उस वक्त लकड़ी की खड़ाव में डीजल नहीं था, पेट्रोल नहीं था। अल्लाह वाले की ताकत देखिए, बगैर डीजल, बगैर पेट्रोल के आपके नालैन पाक, आपकी जूती की खड़ाव प्रवास कर रही है। जादूगर के सर पे बरसना शुरू हो जाती है। जादूगर चिल्लाने लगता है, वाह गरीब नवाज में मान गया, मुझे माफ कर दे। या गरीब नवाज, एक लकड़ी जो तेरे जिस्म से टच हो जाए तो उसके अंदर इतना पावर आ जाए, या ख्वाजा तेरे अंदर कितना जमाल होगा, तेरे अंदर कितना कमाल होगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने जब लकड़ी की खड़ाव को हवा में प्रवास किया था तो सर ऊपर उठा के नहीं देखा था, जोगी जयपाल की तरह अपना सर ने उठाया था। इसमें भी एक राज था। राज ये था कि गरीब नवाज की आंखों में उस वक्त जलाल था। अगर जलाल भरी नजरों से आप जोगी जयपाल को देख लेते, जोगी जयपाल जल जाता। आपको उसे जलाना नहीं था, उसे कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाना था। सुभान अल्लाह। लकड़ी की खड़ाव सर पे बरस रही, चिल्ला रहा, माफ कर दो, माफ कर दो। ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में आके गिर जाता है। गरीब नवाज ने फरमाया, दुनिया वालों देखो, मैंने इसे कदमों पर गिराया था जोगी जयपाल बना करके, अब इसे अपने कदमों से उठा रहा हूं उबैदुल्लाह बयाबानी बना करके। तो ये शान है मेरे ख्वाजा की। गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत तो करो, गरीब नवाज से सच्चा प्यार तो करो। शान देखो मेरे गरीब नवाज की। ऐसा दाता है अजमेर वाला, इतना आता करने वाला है कि दामन हमारा तंग है, उसके यहां कभी नहीं। मांगने वाले जाते हैं, मन मानी मुरादे पाते हैं। फिरोज नामी एक शख्स था जो गरीब नवाज से मोहब्बत करता था, गरीब नवाज से बड़ा अकीदत करता था। ख्वाजा गरीब नवाज से बहुत मोहब्बत करता था। पहले अखियारा था, वह अंधा हो गया। पहले बीना था, अब नाबीना हो गया। खानदान के लोग बदअकीदा थे। खानदान के लोगों ने जाकर के फिरोज से कहा कि तू तो ख्वाजा की बारगाह में जाने वाला था, तू तो उनसे अकीदत रखता है, देख अब तो तू अंधा हो गया, नाबीना हो चुका है, तेरी आंखों की रोशनी गायब हो चुकी है। जा अपने ख्वाजा से आंखों की रोशनी वापस मांग ले, जा अपने ख्वाजा से आंखों का नूर ले ले। खानदान वालों ने ताना दिया। अब वो शख्स कहता है, खानदान वालों सुनो, ताना ना दो, वाकई मेरा ईमान और अकीदा इस बात पर है कि मेरा ख्वाजा ऐसा दाता है कि दामन हमारा तंग है, उसके यहां कमी नहीं। उसकी बारगाह से जो भी मांगा जाता है वो आता फरमा देता है। कहा जा फिर आंखें मांग ले। खानदान वालों ने ताना दिया। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचा। मजार के सामने वो शख्स बैठ जाता है, आंखें अश्कवार हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कहता या गरीब नवाज, खानदान के लोगों ने मुझे ताना दिया है कि पहले तू अखियारा था, अब अंधा हो गया, पहले बीना था, अब नाबीना हो गया।
जा, अगर तेरा ख्वाजा सच्चा है तो अपने ख्वाजा से आंखों की रोशनी वापस मांग ले, आंखों का नूर मांग ले जा करके। या गरीब नवाज, मेरा ईमान अकीदा है कि आप आंखों की रोशनी वापस कर देंगे। या गरीब नवाज, अगर आपने आंखों का नूर वापस ना किया तो खानदान के लोग और भी मुझे ताना देंगे। इतना कह करके ज़ारो कतार रोने लगता है। इतने में क्या देखता है, गरीब नवाज के मज़ारे पाक से एक रोशनी निकलती है, एक लाइट निकलती है। वो आकर के फिरोज नामी शख्स की आंखों से टच हो जाती है। वो नूर आकर के आंखों में पेवस्त हो जाता है। उस लाइट का आंखों में लगना था। इसने जब अपनी आंखों को खोला है तो क्या देखता है, पहले अंधा था अब आखियारा बन गया, पहले नाबीना था अब बीना बन गया, पहले कुछ दिखाई नहीं देता था अब जिधर नजर डाल रहा है सब कुछ उसे नजर आ रहा है। पहले दिखाई नहीं देता था, अब जिधर देखता सब कुछ नजर आने लगा है। कहता है, ख्वाजा, मेरा ईमान और अकीदा है तुम कल भी सच्चे थे, आज भी सच्चे हो, सुबह कयामत तक सच्चे रहोगे। तो शान है गरीब नवाज की। ख्वाजा गरीब नवाज से सच्चा प्यार करके तो देखो, ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची अकीदत करके तो देखो। और मेरे ख्वाजा की शान देखो, अपने मुरीदों के साथ सफर कर रहे हैं। सफर करते करते पहाड़ियों के इलाके में पहुंचे। पहाड़ियों के इलाके में पहुंचना था। आपके मुरीदीन, आपके मोतकदीन, आपके मुहिब्बीन आपकी बारगाह में खड़े हैं। कहते हुजूर बाला, दाना पानी खत्म हो गया, क्योंकि पहले के लोग पैदल सफर करते थे या घोड़ों से सफर करते थे। वो चंद खजूरें या कुछ खाने का सामान, थोड़ा सा पानी रख लिया करते थे। जब पानी खत्म हुआ, मुरीदों ने कहा हुजूर बाला, दाना पानी खत्म हो गया, इंतजाम कीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, मुरीदों परेशान ना हो, इंतजाम हो जाएगा। फिर चले। फिर मुरीदीन कहते हुजूर बाला, प्यास की शिद्दत में हमारी जबानें सूख करके कांटा हो चुकी है, हुजूर अब बर्दाश्त नहीं है, पानी का इंतजाम कीजिए। आपने फरमाया परेशान ना हो, ठहरो। क्या देखते हैं, चंद कदम दूर चंद गैर मुस्लिम एक पीतल को सामने रख के उसकी परस्तिश कर रहे हैं। पीतल की गाय को सामने रख के उसकी पूजा कर रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज उनके करीब गए। जाने के बाद कहते हैं, तुम हमें इजाजत दो, हम इस गाय से दूध निकाल लें। सुभान अल्लाह। इस्लामी भाइयों, क्या शान है अल्लाह वाले की। ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, तुम हमें इजाजत दो, हम इस गाय से दूध निकाल लें। उन्होंने कहा, बाबा क्या देखते नहीं हो, यह असली गाय नहीं बल्कि पीतल की गाय है, पीतल की। हम इसकी परस्तिश कर रहे हैं, इसकी पूजा कर रहे हैं। शक्लो शबात के एतबार से आप मुसलमान लग रहे हो, लेकिन आपको यह नहीं दिख रहा ये पीतल की गाय है। ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, देख तो मैं भी रहा हूं, इजाजत तो तुम दो, हम पीतल की गाय से दूध निकाल लेंगे। उन्होंने कहा, वाकई आप इस गाय से दूध निकाल लेंगे? ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, इजाजत देना तुम्हारा काम, पीतल की गाय से दूध निकालना मेरा काम। इतना कहना था, उन्होंने कहा, आइए इजाजत है। आप करीब जाते हैं, पीतल की गाय के ऊपर दस्ते मुबारक रख देते हैं, वो असली गाय बन जाती है। आपने उसके थनों में हाथ लगा दिया, उसके थनों में दूध आ जाता है। आपने फरमाया, मेरे गुलामों प्याला लाओ। पहला प्याला दूध से भर दिया, दूसरा प्याला दूध से भर दिया, तीसरा प्याला दूध से भर दिया, चौथा प्याला दूध से भर दिया। आपने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों खुद दूध पियो, इन गैर मुस्लिमों को भी दूध पिलाओ। वो कहते, बाबा ये दूध हम बाद में पिएंगे, पहले अपने धर्म का हमें दूध पिलाओ। ये हम दूध बाद में पिएंगे, पहले हमें कलमा पढ़ा के दाखिले इस्लाम करवाओ। ख्वाजा गरीब नवाज ने उनको कलमा पढ़ाया, दाखिले इस्लाम कर लिया। सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे ख्वाजा की। ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने मुरीदों के साथ सफर कर रहे हैं। क्या देखते हैं, चंद कदम पहाड़ियों के इलाके में बढ़े। बढ़ने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज की शान है, जहां चेहरा दिखाने की जरूरत पड़ी आपने वहां चेहरा दिखा करके इस्लाम फैलाया। जहां करामत दिखाने की जरूरत पड़ी आपने वहां पर करामत दिखा के इस्लाम फैलाया। इसीलिए 1-2 लाख नहीं, 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा था आपके दस्ते मुबारक पर। मुरीदों के साथ चल रहे, क्या देखते, चंद गैर मुस्लिम 40 मजूसी आग की परस्तिश कर रहे हैं, आग की पूजा कर रहे हैं।
अग्नि पूजा कर रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा उनके करीब गए, जाने के बाद कहते तुम लोग आग की परस्तिश क्यों करते हो, आग की पूजा क्यों करते हो? अगर इबादत करना है तो उस रब की इबादत करो जिसने हमें भी पैदा किया, तुम्हें भी पैदा किया है, जो सारे संसार, सारे वर्ल्ड, सारी दुनिया का पालनहार है, उसकी इबादत करो। उन्होंने कहा किस रब की बात करते हो? कि जिस रब ने तुम्हें पैदा किया, हमें पैदा किया, जिसने आसमान बनाया, जमीन बनाई, सारी दुनिया की चीजें जिसने पैदा की, उस रब की मैं बात कर रहा हूं। अब वो मजूसी कहते हैं नहीं, हम इस आग ही की परस्तिश करेंगे, आग की पूजा करेंगे। का क्यों? का हमारे आबाओ अजदाद ने इस आग की पूजा की है, हमारे आबाओ अजदाद ने इस आग की परस्तिश की है। ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, ये बताओ कितने सालों से तुम आग की परस्तिश कर रहे हो, कितने सालों से आग की पूजा कर रहे हो? किसी ने कहा हुजूर हम 10 साल से आग की पूजा कर रहे हैं, किसी ने कहा हम 12 साल से कर रहे, किसी ने कहा हम 30 साल से कर रहे, किसी ने कहा हम 40 साल से आग की परस्तिश कर रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमान ने इरशाद फरमाया, अच्छा जरा आग के अंदर कूद के दिखाओ, देखें आग तुम्हें जलाएगी या नहीं जलाएगी। उन्होंने कहा बाबा कैसी बात करते हो, आग का काम है इंसान के वजूद को मिटा देना, आग का काम है इंसान को नेस्तो नाबूद कर देना, आग का काम है इंसान को फना कर देना, आग का काम है इंसान को जला करके खाकिस्तर कर देना। अगर हम आग में जाएंगे, आग हमें जला करके खाक कर देगी। ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, जब इतने सालों से तुम आग की परस्तिश कर रहे हो, इतने सालों से आग की पूजा कर रहे हो, तो आग को तुम्हें जलाना नहीं चाहिए, इसलिए कि तुमने आग को अपना माबूद बना लिया है। उन्होंने कहा बाबा लंबी बातें ना करो, हम आग में जाएंगे, आग हमें जला देगी। अच्छा एक बात बताओ, जब आप आग में जाने के लिए हमसे कह रहे हो, तो क्या आप इस आग के अंदर कूद के दिखा सकते हो? क्या आप इस आग में कूद के दिखा सकते हो? शान देखो मेरे गरीब नवाज की। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमान ने इरशाद फरमाया, सुनो मेरी बात तो बहुत दूर की है, मैंने जो अपने पैरों में लकड़ी की खड़ाऊ पहन रखी है, इस आग में इतनी ताकत नहीं है कि मेरी लकड़ी की खड़ाऊ को जला सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया आग में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरी पहनी हुई जूती को जला दे, जबकि लकड़ी को फौरन जला देगी। उन्होंने कहा इतनी बड़ी बात? आपने फरमाया हाँ। लाइए डालिए आग में, मैं देखता हूं। ख्वाजा गरीब नवाज जो अपने पैरों में लकड़ी की खड़ाऊ पहने हुए थे, आपने लकड़ी की खड़ाऊ को लिया, उस आग में डाल दिया। कई घंटों तक लकड़ी की खड़ाऊ आग में पड़ी रहती है, लेकिन आग ने उस लकड़ी की खड़ाऊ को जलाया नहीं है, लकड़ी की खड़ाऊ का कलर तक चेंज नहीं हुआ है। वो 40 मजूसी अपनी नजरों से मंजर देख रहे थे। ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों पर गिर जाते हैं, गिरने के बाद कहते हुजूर बाला मैं मान गया हूं। घंटों तक लकड़ी जो आपके जिस्म से टच हो गई है, आग में पड़ी रही, आग ने उसे जलाया नहीं है। हुजूर बाला मैं मान गया हूं, एक लकड़ी जो आपके जिस्म से टच हो जाए, एक लकड़ी जो आपके जिस्म से मस हो जाए, उसे दुनिया की आग ना जला सके। अगर हम आपके दामन से वाबस्ता हो जाएंगे, अगर हम आपके नाना का कलमा पढ़ लेंगे, हुजूर वाला हमें भी जहन्नम की आग नहीं जला सकती है। ख्वाजा गरीब नवाज की ये करामत देख करके 40 मजूसी कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो जाते हैं। ये शान है मेरे ख्वाजा की। ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत करके तो देखो, ख्वाजा गरीब नवाज से सच्चा प्यार करके तो देखो, शान क्या है। रास्ते से निकलते थे, अगर कुरान पाक की तिलावत करते थे, जंगलों से शेर बाहर आ जाया करते थे, आपके कुरान पाक की तिलावत सुना करते थे, भेड़िए आ जाते थे, परिंदे आपके सर के ऊपर मंडराने लगते थे, आपके कुरान पाक की तिलावत को सुना करते थे। आज यूं ही नहीं, पूरी दुनिया में ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं। यूं ही नहीं, पूरी दुनिया में ख्वाजा गरीब नवाज के नाम के डंके बजाए जा रहे हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते, हिंदुस्तान में एक बारगाह ऐसी है जिस बारगाह में हर जायज दुआ कबूल हो जाती है। आपने फरमाया वो बारगाह
ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद की है, जिस बारगाह में जो भी जायज दुआएं मांगी जाती हैं, अल्लाह ताला उन जायज दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। ये शान ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की। तो इस्लामी भाइयों, सच्चे दिल से ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करो, सच्चे दिल से ख्वाजा गरीब नवाज से अकीदत करो, इंशाअल्लाह यहां भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब हो जाओगे। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा, या गरीब नवाज सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहां जाते, तेरा दर छोड़ के ख्वाजा ये दीवाने कहां जाते। हमेशा भीख हमने तो उसी चौखट से पाई है, हमेशा भीख हमने तो उसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहां जाते।